آواز آ رہی ہے؟ جی جی وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں؟ بس سب ٹھیک ہے. کیسے صاحب میں بھی تھوڑا اپنا ان پٹ آپ کو دے دوں. جب حارث سلطان نے اپنا ختم کیا کام ڈیبیٹ کے لیے شاید میں نے ابو شکر بھائی میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے شاید منع کیا تھا کہ اب ڈیبیٹ کا انالیسس جب کیسر بھائی کریں گے پروگرام تو تب آپ آ جائیے گا اس پر. وہ کر رہے ہیں نا؟ اوکے ٹھیک ہے پھر میں تب آ جاؤں. ہاں جی جی آج بالکل. اور آئیڈیالوجی دوسرا کا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ابو شاکر صاحب آپ کے پاس تو اب اپنے پلیٹ فارم ہے نا، آپ ہمیں دھمکی دیتے ہیں میں اپنے پلیٹ فارم پر جا کر چیخ و چنگاڑ کروں گا، تو ادھر کر لیجئے گا. ابھی سوال رکھ لیں. تھینک یو ابو شاکر بھائی. بھائی کر رہا ہوں پیشنس رکھ یار، وہ مل جائے گا. اینڈ کال نہ کر. نہیں آج میرے پاس کچھ نہیں ہے. میرے پاس کوئی عزم نہیں ہے آپ کے پاس لڑنے کے لیے. بس ٹھیک ہے. وہ تو پہلے بھی نہیں، وہ تو پہلے بھی ابو شاکر صاحب نہیں تھا، پہلے بھی نہیں تھا. آپ غلط فہمی میں تھے. کوئی بات نہیں. آپ کو ابو شاکر صاحب ایک بات بتاؤں آپ کو میں راز کی. ہاں بتائیے. پتہ ہے ایتھیسٹ کا جو ازم ہوتا ہے اس کی شیلف لائف ایک کوسچن تک ہوتی ہے. جب تک وہ کوسچن کرتے رہتے ہیں تب تک ان کا ازم زندہ رہتا ہے. جب ان کو جواب دینے کی باری آتی ہے تو ازم فوت ہو جاتا ہے. پھر وہ کبھی ایگنوسٹک بن جاتے ہیں، کبھی ڈیسٹ بن جاتے ہیں، کبھی اسکیپٹک بن جاتے ہیں، کبھی پتہ نہیں کیا بن جاتے ہیں. And I just don't know کہ یار at what stage will you start thinking کہ یہ سارے کا سارا ایک خراب بازار ہم نے بنایا ہوا ہے. جان چھڑائیں اس سے، ایک اللہ کی طرف جائیں، ایک ریشنل سسٹم کی طرف جائیں جہاں پہ حقوق و فرائض ہیں، جہاں پہ سینس آف رسپانسبلٹی ہے، جہاں پہ سینٹرلائزیشن ہے، جو کہ سارے کے سارے کولیکٹیوسٹ آئیڈیا ہیں جو پرفیکٹ یہ کوڈ کرتا ہے ہیومن نیچر سے جو کہ کولیکٹیوسٹ ہے. چھڑائیں جان اپنی، کہاں پھنسے ہوئے ہیں. کچھ ایتھیسٹ ایسے ہیں، میں آپ سے اگری کرتا ہوں. ہر ایتھیسٹ الگ ہے. بہت سے ایتھیسٹ جو آپ کے پاس بات چیت کرنے کے آتے ہیں وہ کافی احمق ہوتے ہیں. تو میں تو تسلیم کرنا اس بات کا. تو پر ہر ایتھیسٹ ایسا نہیں ہوتا. That's my point کہ ہر ایتھیسٹ ایسا نہیں ہوتا. That is the whole point کہ چونکہ کوئی کلیکٹیوسٹ تھاٹ نہیں ہے، کوئی سینٹرلائزیشن نہیں ہے. میں آپ کو پتہ ہے، آپ پہلے بڑے ٹائم سے آپ آ رہے ہیں، وہ جو ہماری ایک اسٹریم چل رہی تھی کنونس می آن ایتھیزم، وہ 55 گھنٹے کے لگ بھگ وہ چلی تھی. اور کیا ہی مزے کی بات ہے کہ 55 گھنٹے میں ایتھیسٹ مل کے ڈیفائن تک نہیں کر سکے کہ ایتھیزم کیا ہوتا ہے. اس میں آپ کے ملک کے بھی آئے تھے ایتھیسٹ، انڈیا سے بھی، میرے خیال میں یو کے سے بھی، پاکستان، وہ کہاں سے اکٹھے ہو کے کوئی دو ایتھیسٹ آپس میں اتفاق نہیں کر سکے کہ ایتھیزم ہوتا کیا ہے. ہاؤ ڈو وی ڈیفائن دیٹ ان ون سینٹینس؟ میرے لیے تو ڈیفینیشن یہ ہے، ایتھیسٹ وہ ہے جو گاڈ پہ یقین نہیں کرتا جب تک وہ سیٹسفائی نہ ہو جائے کہ اس کے لیے ایڈیکویٹ ثبوت ہو. That's it, nothing more. You see, that's fine. And I respect the fact کہ آپ نے بڑے کلیئر طریقے سے آپ نے بتایا. پر پرابلم از کہ آپ نے یہ بات کرنے سے پہلے کہا کہ میرے نزدیک یہ ہے، which means کہ اگلے کے نزدیک کچھ اور ہوگی، اس سے اگلے کے نزدیک کچھ اور ہوگی. And that is the point I am making. You can't even define what is atheism coherently. تو میں کیوں انسان ٹائم، میں اسی لیے کہتا ہوں نا کہ ایتھیزم انسانی انٹلیکٹ کے لیے ایک انسلٹ ہے کہ جس چیز کو آدمی ڈیفائن بھی نہیں کر سکتا، جس کو چیز پازیٹیو نہیں کرتی، دیر از نتھنگ ٹو ٹاک اباؤٹ سوائے اس کے کہ مجھے نہیں پتا لیکن میری علمی کی بیس پہ مجھے یقین ہے کہ تم غلط ہو. دیٹس انسلٹنگ ٹو ہیومن انٹلیکٹ، ڈونٹ یو تھنک؟ نو آئی ڈونٹ تھنک سو. میں تو ڈائریکٹ ڈکشنری کی ڈیفینیشن پہ جاتا ہوں تاکہ آپ بھی سمجھیں میں کون ہوں، لیکن میں بھی سمجھیں میں کون ہوں. جس طرح ایک منٹ، جس طرح آپ نے لا اسٹڈی کیا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ہر جج یا وکیل کے پاس بک آف اتھارٹی ہوتی ہے کرمنل لا میں بھی، جس سے وہ ڈرائیو کرتے ہیں. سو ایوری باڈی از آن دا سیم پیج. اسی طرح ایتھیزم بھی ایسا ہے، میرے لیے تو ایتھیزم بھی ایسا ہی ہے جیسے بک آف اتھارٹی. Did you just accept کہ آپ ڈکشنری پہ ایمان رکھتے ہیں؟ نہیں، ڈکشنری ڈکشنری کی ڈیفینیشن پہ آپ ایمان رکھتے ہیں؟ میں ایتھیزم ایز ڈیفائنڈ بائی ڈکشنری. اور اگر دو ڈکشنریز میں علیحدہ علیحدہ ڈیفینیشن ہو تو بائی واٹ اسٹینڈرڈ آپ کہیں گے کہ ایک غلط ہے اور ایک ٹھیک ہے؟ دے آر ویری کلوز. میں نے آکسفورڈ کا نام لے لیا ہے، اگر دوسرے بھی کوئی کھولیں تو دے آر ویری سملر. میں بھی یہ کہتا ہوں آئی ایم بیسٹ فٹ. 100% تو میں اس میں بھی میچ نہیں ہوتا، بٹ آئی ایم بیسٹ فٹ. ایک ہے نا جو آپ کی، جیسے آپ نے آکسفورڈ کہا، یہ جو اسٹینڈرڈ ہماری ایکیڈیمک ڈکشنریز ہوتی ہیں، لیکن یہ جو آئیڈیاز ہیں یہ تو فلسافیکل ہیں، وچ مینس کہ ہم جو فلسفی میں جب ٹرمز کو یوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو عام لینگویج میں ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ازم کا مطلب فلسفی میں وہ نہیں ہوتا جو ہم ایوری ڈے لینگویج میں ہم یوز کرتے ہیں. ٹھیک،
अनइंटरेस्टिंग का मतलब फिलॉसफी में वो नहीं होता। आपने बड़ी, मुझे पता नहीं है कि आप डिबेट्स कितनी सुनते हैं, आपने अगर सुनते हैं तो आपने बड़ी दफ़ा नोट किया होगा कि कोई फिलोसफर कह रहा होता है कि दैट इज़ अनइंटरेस्टिंग टू मी। अब नॉर्मल इंग्लिश में इसका मतलब है मुझे से कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन फिलॉसफी में जब हम कहते हैं कि समथिंग विच इज़ इंटरेस्टिंग और अनइंटरेस्टिंग तो उसका मतलब कुछ और होता है। एट द सेम टाइम एवरी लैंग्वेज में हम जो कहते हैं कि दिस इज़ मीनिंगलेस टू मी, तो उसका एक मतलब हमें पता है क्या होता है। लेकिन जब फिलोसफर कहता है कि दिस इज़ मीनिंगलेस टू मी तो उसका मतलब टोटली डिफरेंट होता है, वो एटलीस्ट टोटली तो नहीं लेकिन सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होता है। सो द पॉइंट वी आर मेकिंग इज कि आप जब डिक्शनरी में, एकेडमिक डिक्शनरी में एथिज्म की डेफिनेशन देखेंगे तो वो और होगी। फिलॉसफी में जब आप देखेंगे तो वहां पे आपको एथिज्म की 4-5 डेफिनेशंस लिखी हुई मिल जाएंगी, डिपेंडिंग ऑन के आप हैं किस तरह के। फिर आप कैसे चूज करेंगे? क्योंकि मैं इस बारे में ज्यादा कह नहीं सकता, क्योंकि मैं तो हमेशा एक इंडिविजुअल की तरह बात करता हूँ, चाहे मेरे मुंह से फिलॉसफी निकल जाए। पर्पसली तो मैं कभी फिलॉसफी पे बात करता नहीं, अगर मुंह से निकल जाए, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ समझने। ठीक बात है। तो आप एज एन इंडिविजुअल बात करते हैं, सो देन देयर इज अनदर एथियस्ट जो आपके साथ खड़ा है, वो भी एज एन इंडिविजुअल बात करता है, और जब एथिज्म को डिफाइन करने की बारी आती है तो वो आपसे मुख्तलिफ राय रखता है। देन हाउ डू वी नो कि आप दोनों में से कौन ठीक कह रहा है? मैंने कहा कि मैं तो डिक्शनरी डेफिनेशन पे जाता हूँ, अगर वो भी डिक्शनरी डेफिनेशन में जाता है तो वहां पर हम बराबर हैं। उसके बाद राय तो हर बात में हमारी अलग हो सकती है। That is the point I am making कि आप लोगों में कोई सेंट्रलाइजेशन नहीं है, कोहेजन नहीं है। हर आदमी ने अपनी अपनी डेफिनेशंस पकड़ी हुई हैं, अपनी अपनी साइंस पकड़ी हुई है, अपनी अपनी पढ़ी। नन ऑफ दैट अकॉर्ड्स विद ह्यूमन नेचर, जो कि कलेक्टिविस्ट है कि कम से कम सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। यू गॉट टू एग्री विद समथिंग, उसके बाद फिर आप उसकी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, लेकिन आप जो मजमूई तौर पे इजमा है उस पर आप राय रख सकते हैं उसके खिलाफ, लेकिन उसके खिलाफ प्रैक्टिकली आप नहीं जा सकते। दैट्स ह्यूमन सोसाइटीज ऑपरेट। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कोई एक ऐसा मुल्क हो जो खालिस एथिज्म की बेस पे बना हुआ हो, तो उसमें क्या होगा? वैसे हमें पता है, यानी कि जो एथियस्ट स्ट्रोक सोशलिस्ट मुल्क 3 बने हैं उसमें इंसानों के साथ क्या हुआ, लेकिन हम जस्ट इंटरेस्टेड कि वहां पे गवर्नमेंट क्या कहेगी। कि हमने एक रूल बनाना है तो इमेजिन करें कैबिनेट बैठी हुई होगी और सारी कैबिनेट जो है वो अपनी अपनी बात कर रही होगी, इसलिए कि हर आदमी की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है, अपनी अपनी राय है। जुर्म क्या होता है क्या नहीं होता, हर आदमी की अपनी डेफिनेशन है। You can't even have a functional society of pure atheists. मेरे नजदीक वो एक सेक्युलर कंट्री होगा, सेक्युलर। आप खुदा पे Secularism has बिलीव nothing to करना do with चाहते हैं atheism. कीजिए। नहीं, नहीं अबू शाकिर साहब, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, ये जो हमारे देसी एथियस्ट है ना, मैं उनसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, आपसे नहीं। सेक्युलरिज्म एथियज्म नहीं होता। पर मैं सेक्युलर भी हूँ ना, आप ये नहीं कह सकते कि मैं सेक्युलर नहीं हो सकता। भाई मैं एथियज्म की बात कर रहा हूँ, मैं सेक्युलरिज्म की कब का बात कर रहा हूँ? आप एथियज्म की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे। गवर्नेंस का एथियज्म से कोई ताल्लुक नहीं। मैं क्या खाना खाता हूँ, क्या पीता हूँ, इसका एथियज्म से कोई ताल्लुक नहीं। आपके खाने से फ्रैंकली सेक्युलरिज्म का भी से कोई ताल्लुक नहीं कि आप क्या खाते हैं। पर सोचें एक मिनट के लिए, मैं आपको ना एक ह्यूमन बेसिस पे मैं एडवाइस देना चाहता हूँ कि व्हाई इज इट कि जब हम एथियस्टिक कोहेजन की बात करें तो हमें ये पोजीशन डिजर्ट करके किसी और इज्म की तरफ जाना पड़ता है, फॉर एग्जांपल सेक्युलरिज्म या किसी और तरफ। इसके अंदर क्यों इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि ये कभी भी खुल के अपना दिफा कर सके? हमारे पास दिफा करने के लिए तो कुछ है ही नहीं। सिंपल ये है, 1 मिनट लेफ्ट। हम गॉड पे बिलीव नहीं करते। दैट्स इट। आप सबूत देने, हम बिलीव करने लग जाएंगे। उख्ती, पता है आपका हिसाब क्या है? जब ड्रामा सही है, कोई सीरीज चल रही होती है, तो जब ड्रामा सही एक्साइटिंग स्टेज पे आता है ना, तो वो किस्त खत्म हो जाती है, फिर अगली किस्त का इंतजार करना पड़ता है। आपको मजा आ रहा है नीचे कमेंट्स में लोग जिस तरह मेरी मिन्नतें कर रहे हैं ना, वो मुझे पता है, लेकिन आप मुझे बता दीजिए कि आपको मैक्सिमम टाइम, क्योंकि अब मैं 15-15 मिनट तो नहीं दे सकती। नहीं बिल्कुल नहीं, हम जाएंगे नहीं। मैंने सिर्फ बस एक कंफर्मेशन लेनी है अबू शाकिर साहब से। ये बातें कह चुके हैं, सिर्फ मैंने कंफर्मेशन ही लेनी है। दोबारा से रिपीट करेंगे अबू शाकिर साहब कि आप ये कह रहे हैं कि आपके पास डिफेंड करने के लिए कुछ भी नहीं है? As एथियज्म नो, मेरे पास तो कुछ नहीं है डिफेंड करने के लिए। अगर आप एथियज्म को कहते हैं बुरा है, मेरे पास तो डिफेंड। जी ये जो हारिस सुल्तान ने आप लोगों से किया है ना, इसके बड़े दूर रिपरकशन जाएंगे। जगह जगह आप लोगों से पूछा जाएगा मोरालिटी के बारे में, दिफा के बारे में। ये इंटरनेट के जिस मोहल्ले में हम रह रहे हैं ना, जिसमें
मोहल्ले से मुराद की जो नीश है जिसमें ये मुस्लिम वर्सेस एथियज्म और ये सारी बातें हो रही होती हैं, ये इस मोहल्ले की गली गली से आवाज़ें आएंगी, हमारे पास को कोई मोरालिटी नहीं है, वो कुछ एब्सोल्यूट नहीं होता, वो हमारे पास दिफा करने को कुछ नहीं है। फिक्री यतीमी खुल के सामने आ रही है अब। बहरहाल शुक्रिया आपका, आपने दोबारा आपसे इज्जत बख्शी, तशरीफ लाए और आपकी वजह से हाथ थोड़ा सा और खोला। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। कैसर भाई मेरा एक सवाल है कैसर भाई आपसे। यार आप एंजॉय तो करें ना पहले, कि अब कैसी कैसी बातें शुरू हो गई। तो हमारे पास कुछ भी नहीं है डिफेंड करने के लिए। कैसर भाई ये ढीठ लोग हैं, इनको कोई यकीन करें, कोई लत्ती चढ़ी नहीं है ना, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है। अच्छा कैसर भाई मेरा आपसे एक सवाल है मासूमाना। जी सर। कैसर भाई मिसाल के तौर पर मैं शराब नहीं पीता और मैं शराब के फवायद के ऊपर आपसे बहस करने के लिए आ जाऊं, यानी मैं टॉपिक रख लूं अल्कोहल वर्सेस नॉन अल्कोहलिक, ठीक है, अल्कोहलिक वर्सेस नॉन अल्कोहलिक, मैं डिबेट रख लूं। ना मैं पीता हूं, ना मैं उसको ठीक समझता हूं, ना मैं समझता हूं कि उसको मार्केट में होना चाहिए, यानी मैं एक तरह से खुद नॉन अल्कोहलिक हूं और मैं आपसे अल्कोहलिक होने के ऊपर डिबेट करने के लिए आ जाऊं। कैसर भाई आप और जनता मुझे क्या कहेंगे, या ऐसे बंदे को क्या कहेंगे आप? एथियस्ट। और क्या कह रहे हैं? अच्छा ठीक, हाँ ठीक है, यानी आपने पागलपंती और बुद्धू का एक सोफिस्टिकेटेड नाम ले लिया, ठीक हो गया, सही है। कैसर भाई आपकी जी जी सर। अब देखें ना, ये जो भाई हमारे आए थे अबू शाकिर साहब, तो ये कह रहे हैं कि जी हमारे यहाँ ये भी चीज नहीं, हमारे पास कोई डिफेंस करने को नहीं है। तो ये वर्सेस क्यों लगाते हैं? ये वर्सेस का चस्का है क्या? सुपर चैट के लिए आदत पड़ गई है वर्सेस वर्सेस की, हैं? कहीं आपका वर्सेस हम टगे के साथ ना करवा दें जो आपको चुक के रखे सिंगों के ऊपर। मतलब जी यानी ये कैड में मैं कई दफा सोचता हूँ या अल्लाह, ये कौन सी दुनिया में हम आ गए हैं? ये किस किस्म के लोगों के बीच हम सांस ले रहे हैं? ये किस किस्म की कयामत की निशानियां हैं? ये किस किस्म का अजाब हमें दे दिया है मौला? मैं अल्लाह ताला से कभी कभी ये दुआ भी करता हूँ, उसका बंदा हूं तो हल्का फुल्का शिकवा भी कर लेता हूँ, वो फिर मुझे जवाब मिल जाता है। और वो जवाब ये है कि अल्लाह ताला मेरे दिल में ये या मेरे जहन में ये बात आ जाती है अल्लाह की तरफ से ही कि आमिर मेरे बंदे, ये मैं तखयलाती तौर पर कह रहा हूं कि आमिर मेरे बंदे, अगर मैं ऐसे लंगूरों को, ऐसे बंदरों को एज पर द इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एवोल्यूशन, अगर मैं ना आपके मुआशरे में रखता, ना बांध इनको भेजता, या ना आपका इनका सामना आमना सामना होता, तो मेरी नेमतों का शुक्र कैसे अदा करते कि अल्लाह ने सोचने समझने की, अकल करने की और सच को मानने की और एक अल्लाह के सामने सर झुकाने की जो नेमत है, उसका तुम लोगों को अंदाजा कैसे होता? क्योंकि देखिए इंसान को किसी नेमत का, मिसाल के तौर पर मैं बड़ी झटकी सी मिसाल देता हूं, मेरी आदत में झटकी मिसाल देता हूं। आप लोगों में से जिनके पास गाड़ी है उनको झटकी मिसाल समझ आ जाएगी। आप लोगों की गाड़ियों में स्पेयर टायर होगा, स्पेयर टायर को कभी को मुंह भी नहीं लगाता साला साल, उसमें मट्टी भी पड़ जाती है, कई दफा जंग भी लगा होता है, हाँ जी, वहां चिड़ियां भी बच्चे दे जाती हैं, मेंढक भी वहां 1 साल का रेंट फ्री रिहाइश रख लेता है, स्पेयर टायर है। मगर स्पेयर टायर की अहमियत का पता तब चलता है जब गाड़ी पंक्चर हो जाती है या गाड़ी का टायर फट जाता है, उस वक्त आपको स्पेयर टायर का पता चलता है। मकसद कहने का यह है कि इंसान को कभी भी जिंदगी के अंदर उन लोगों के वजूद का कि जो कि शर फैला रहे हैं और शैतानी हरकतें कर रहे हैं, उनकी हिकमत कभी समझ नहीं आती जब तक आपका उन लोगों से वास्ता ना पड़े। वो शायर कहता है ना, मैं अक्सर पढ़ा करता हूं कि जरा सी बात पे बरसों के यराने गए, जरा सी बात पर बरसों के यराने गए, चलो अच्छा हुआ कुछ लोग तो पहचाने गए। मकसद कहने का ये है कि ये जो झड़पें हैं ना हल्की हल्की, जिस तरह कैसर भाई करते हैं या डिबेट्स होती हैं, इससे आपको जहां हक और बातिल में फर्क कर कर अपनी जिंदगियों को बेहतर करने का मौका मुयस्सर आता है, वहीं आपको इस चीज की भी खबर मिलती है कि आपने अल्लाह की उन नेमतों का जो आपको हक के करीब कर देती हैं और अपने अल्लाह के सामने झुकाकर एक अच्छा इंसान बना देती हैं, उन नेमतों का शुक्र भी अदा करना है। ये 2 गुना हिकमत और 2 गुना पहलू आपके सामने तभी आते हैं जब आपको जनाब मौका मिलता है। बहुत शुक्रिया।
بالکل، آپ نے عامر بھائی بڑی زبردست بات کی. سی ایس لوئس نے اس کی ایگزامپل دی تھی کہ آپ یعنی کوئی بھی اسٹریٹ چیز ہوتی ہے، آپ جب تک کروکڈ چیز کو نہ دیکھیں تو آپ کو اسٹریٹ چیز سمجھ ہی نہیں آتی، نہ اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، نہ اس کی افادیت کا سمجھ چلتا ہے. سو ہیز ٹو بی سم تھنگ ان کانٹراسٹ ٹو اپریشیٹ وٹ ورکس. تو ہمیں میرے خیال میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ہم زیادہ کر سکتے ہیں جب ہم ایتھیسٹ کی ذہنی حالت کو دیکھتے ہیں بیچاروں کی، کہ یہ ہے الٹرنیٹیو. Is that the alternative? تو